your health? Om Kumar. Yes, sir. Is it okay now? Yes, sir. Okay. So yesterday we had started in the train. We had started that chapter 18. We had started chapter 18. Yes, sir. Okay, so let's begin. So chapter 18 we were doing, isn't it? Are you able to see book on the screen? Yes, sir. Okay. Okay, let us try to understand and solve. Yesterday's videos, both of you have got? Yes, sir. Okay. So today we have now, today we will solve question number 2 and Two. 3. From 2 Yes. onwards we will solve. Yes, sir. Okay, in question number 2 is very easy. Question number 2 is nothing. Read out question. What is question written? You have solved question number 2. Okay, I will solve from So question question number number 2. Tell me, what is question written? Read out question. What question is written? Read out. Question number 2, page number 261. classify the following as vertical, horizontal, and oblique. Number 1, the bottom edge of a door. Okay, now let me on my video also. At my room, there is no electricity. That's why my face is visible. Is it visible to you, my face? Yes, sir. Okay. So yesterday I told you this is nothing. We just have to classify. And this is very easy. Let me show you how will you solve. Here you just need to classify that whether someone is vertical, horizontal, and oblique. So let us take an example again. See, in my hand there is a scale. Are you able to see it, the scale? Yes, sir. If I have placed like it, so what will you say it? Vertical, horizontal, or oblique? What is it? Vertical. Vertical. Okay, something is, if it is like that, the straight, that means vertical. And something, if it is like that, what will you say it? Horizontal. Horizontal. And if it is like that or like that, what will you say it? Oblique. Oblique. Very good. So now we have been given here some question, and among some questions we have to find out that whether these things are vertical or oblique. We just need to find out. So let us solve. Let us solve number 1 first. Number 1. Okay. Yes, sir. The bottom of edge of a door. The bottom of the edge of a door. The door you have seen, the bottom side, what will you say it? Is it vertical or what? The bottom of the edge. Vertical. No. Vertical. No. Bottom of the edge. Bottom of the edge you do not understand.
अरे दरवाजे का निचला हिस्सा, कोई दरवाजा हो उसका निचला हिस्सा तो हॉरिजॉन्टल Horizontal. है। यस, सो यू हैव टू राइट नंबर 1 आंसर वुड बी, वन आंसर वुड बी हॉरिजॉन्टल, HORI, ओके, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। Okay, then number 2. What number 2 is written? Question, read out. A Is soldier standing in the attention position. position. So Vertical. a soldier, yes, a soldier standing in the attention position. When PT sir say attention, so everybody stands like that. So that is vertical. That is vertical, right? Vertical. Then number 3. Number 3 is written the handrail of a staircase. सीढ़ी से चढ़ने का जो दीवार होता है वो क्या होता है? तिरछा होता है, तो वो ऑब्लिक हो गया, वो क्या हो जाएगा? Oblique. ऑब्लिक। Oblique. अब नंबर 4, नंबर 4 क्या लिखा है? ए लैडर A लीनिंग ladder अगेंस्ट ए वॉल। land. लीनिंग अगेंस्ट वॉल मतलब सीढ़ी को जब दीवार पर लगाया जाता है तो सीढ़ी हमेशा तिरछा होता है, Yes, sir. तो तिरछे को Oblique. ऑब्लिक बोलते हैं, तो लिखेंगे ऑब्लिक। ओम कुमार, समझने में कोई भी प्रॉब्लम? और फैसल? No, sir. ठीक है, कुछ होना भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होगा तो तुरंत बोलोगे। ये चैप्टर इतना इजी है कि अभी समझ में आ जाएगा कितना इजी है। नंबर 5, द हिंज्ड एज ऑफ ए डोर। तो हिंज्ड एज के मतलब क्या हुआ? वो वर्टिकल होता है। हिंज डोर मतलब वो जो साइड वाला खड़ा होता है उसे वर्टिकल कहते हैं। जो भी चीज Vertical. सीधा खड़ा हो, Vertical. हिंज्ड एज, हिंज वाला किनारा वो वर्टिकल होता है, तो लिखेंगे वर्टिकल। देन नंबर 6 वी हैव, इन नंबर 6, होराइजन एट सी। समंदर का जो होराइजन होता है, क्षितिज जिसको बोलते हैं, मतलब जहां तक आखिरी नजर जाती है, वो हॉरिजॉन्टल हो गया। क्या हो गया? Horizontal. Horizontal. हॉरिजॉन्टल। अब ये आंसर मैच करो, देखो बुक के आंसर से ये सारा आंसर मैच करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो हम लोग को फिर से बनाना होगा। मैच करो ओम कुमार। पेज नंबर 392 पर दिया है, पेज नंबर 392 ओपन करो और आंसर मैच करो। So all answers are matched. कोई समझने में कुछ प्रॉब्लम? ओम कुमार एंड फैसल, No, sir. समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलना है। तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं? No, sir. ठीक है। Okay, so let us read out question number 4. Read out question number 4. What is written? Sir, 3 number is also. Question number 4. What is written? Okay, 3 is left. Okay, read out. Based. In which? No, 3 is left now. Yes, Read sir. out 3. Question number Yes, 3. sir. What is written? In In which which plane plane do do the the wheels of a moving wheels bike? of moving bike move? कितना इजी Movable. क्वेश्चन है कि मोटर बाइक जो चलता है, कोई भी व्हीकल जो चलता है, तो कौन से प्लेन पर चलता है? वो धरती पर चलता है ना? Horizontal. हाँ, So तो horizontal. यस, हॉरिजॉन्टल ना होगा। अरे जो भी चीज सोया हो, लेटा हो, वो हॉरिजॉन्टल हो गया, और जो खड़ा है उसे वर्टिकल बोलते हैं, और जो तिरछा ऑब्लिक बोलते हैं। बस हो गया।
जितना भी जमीन है, धरती है, ये तो जमीन में फैला हुआ है ना, मतलब चिपका हुआ है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया। आंसर आंसर में वर्टिकल दिया हुआ है। नहीं, तब समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखो, इन विच प्लेन डू द व्हील्स ऑफ ए मूविंग बाइक रिवॉल्व। इन विच प्लेन मतलब किस तरह का ऐसा प्लेन है, डू द व्हील्स ऑफ ए मूविंग बाइक रिवॉल्व, चलती हुई बाइक का व्हील्स जो मूव करता है वो किस में, तो इसका आंसर वर्टिकल ही होगा। बोले क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ओरिजेंटल पर रख देंगे तो ओरिजेंटल पर वो तो खड़ा रहेगा, और वर्टिकल पर अगर हम लोग रख देंगे तो वर्टिकल पर वहां से अगर मान लो सीधा कोई चीज है तो वहां से चक्का घुमाएंगे तो वो सीधा अपने आप नीचे गिर कर आ जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। तो ये समझने में मिस्टेक था, तो इसे हम लोग 3 लिखेंगे, वर्टिकल। अब 4 पढ़ो, 4 नंबर क्या लिखा है? 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर बोलो। बेस्ड ऑन द एडजेसेंट फिगर नेम द फॉलोइंग। अच्छा, साइड में एक फिगर दिया गया है और उस फिगर को पढ़ कर करके, उस फिगर को समझ कर करके, इसमें 5 क्वेश्चन है, उसका हम लोगों को आंसर करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है। अभी हम दिखाते हैं करके, पिक्चर थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं और आंसर करते हैं। 4 का 1 नंबर करेंगे। इसको कॉपी करने दो, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे एक नए पेज में। Okay, let us see question number 4. Question number 4, 1. All horizontal lines. तो इसमें जितना भी horizontal lines है नंबर 4 का, वो हम लोगों को लिखना है। तो 4 का 1 नंबर, तो सारा horizontal line कौन कौन सा है देखो, यहाँ ध्यान से देखो। DC है ना, ये DC एक horizontal हो गया। यस सर। तो पहले लिखो DC, फिर उसके बाद है KH। तो यहाँ देखो KH दूसरा हॉरिजॉन्टल हो गया, K से H, KH लिखेंगे। Now we have third one. Third one we have AB, see here, AB and FE, or EF you can write. AB, write AB, then write E and F. 4 1 we have completed. 4 of 1 we have completed. 4 का पहला नंबर हो गया। Now second number. Second number, what is written? All vertical lines. जितना वर्टिकल, जितना खड़ा लाइन है उसको लिखो। तो क्या क्या है यहाँ देखो, पिक्चर AD, FK, BC, EH, बस लिख देना है। लिखो AD, फिर इसके बाद BC, after that we have FK, then we have EH. So easy it is. है कि नहीं? आसान है कि नहीं? यस सर। ये सब में कुछ दम ही नहीं। अब थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में क्या लिखा है?
थर्ड नंबर में है ऑल वर्टिकल प्लेन्स। प्लेन्स मतलब वर्टिकल प्लेन्स जगह सतह जो है उसको पूरा लिखना है। तो वर्टिकल प्लेन्स कौन कौन सा है? वर्टिकल प्लेन्स मतलब उसका चारों एरिया लेना है। तो वर्टिकल प्लेन्स देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले है DCBA। तो यहाँ देखो DC और फिर BA, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। तो लिखेंगे हम लोग DCBA। फिर उसके बाद है CHEB। तो पिक्चर देखो, CH फिर उसके बाद EB, जितना वर्टिकल प्लेन है उसको लिख देंगे CHEB। वेरी इजी। फिर पिक्चर टेल देखिए, अगेन। CHEB, CHEB। सारा पिक्चर में से ही निकाल रहे हैं, तो पिक्चर ध्यान से देखो, समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम लोगों के पास है ADKF। ADKNF, ADKF, ये पूरा एरिया वर्टिकल प्लेन जो है उसको हम लोग कर रहे हैं। अब ऑल हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, तो ऑल हॉरिजॉन्टल प्लेन्स भी लिखेंगे अब हम लोग। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं ताकि लिख पाए। नंबर 4, ऑल हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। तो ऑल हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में कौन कौन सा हो जाएगा? DCHK। देखो DC और HK, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग DCHK। हॉरिजॉन्टल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ। और फिर उसके बाद ABEF। ABEF, ABEF, ABEF के बाद बस यही दो हॉरिजॉन्टल प्लेन निकला है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या क्वेश्चन है? ऑल लाइंस परपेंडिकुलर टू DC। जितना भी लाइन है जो DC के परपेंडिकुलर है, मतलब जो DC पर खड़ा लाइन कौन कौन सा गिर रहा है? देखो तो DC पर खड़ा लाइन कौन कौन सा गिर रहा है? A और B। A और B, AD है, FK है, फिर BC है, EH है, इतना सारा है ना, कैसे देख रहे हो? किस से? तो लिखते जाना है। पहले लिखना है DA या AD, कुछ भी लिख सकते हो। तो DA लिखेंगे हम लोग। DA। हाँ, क्वेश्चन क्या लिखा है? देखो क्वेश्चन लिखा है DC के परपेंडिकुलर। DC पर कौन कौन गिर रहा है? तो DC से काउंटिंग होगा। तो DC पर सबसे पहले DA गिर रहा है, तो DA लिख दिए। सर फिर CB है। हाँ, सर इस सब में कॉमा की जगह इस पैरेलल तो नहीं लगेगा? नहीं पैरेलल, बेवकूफ, अकल बुद्धि नहीं है। पैरेलल बोला जाता है जो पटरी जैसा लाइन है। यहाँ पैरेलल का कुछ नहीं मीनिंग है, पैरेलल का क्वेश्चन ही नहीं। फिर उसके बाद है KF। फिर उसके बाद है KF, तो KF लिखेंगे। इससे इजी मैथ तो कोई है ही नहीं पूरे चैप्टर में, जो देखने के साथ समझ में आ जाता है। देन EH। कोई प्रॉब्लम? समझ गए? यस सर। ओम कुमार, समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। Okay, now open your book at page number 62. 62, 260। sorry 262। 262 किधर है देखने दो। ये तो 264 है, सर ये वाला है, नीचे वाला सर। नीचे वाला है, ठीक है। यस सर।
ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और एक फ्रेश पेज में देते हैं। आज मैथ्स पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, इतना इजी है कि इसका पूछो मत। चलो इसको 262 देखो। अब तुम लोगों को समझना ट्रांसवर्सल। ओम कुमार एंड फैसल, नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर। अब दोनों मिलकर ध्यान दो। ट्रांसवर्सल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रांसवर्सल। तो अब ध्यान से देखना और जो भी चीज समझाएंगे उसको समझना कि ट्रांसवर्सल क्या चीज है। ठीक है, a line which intersects two or more given line in a plane at distance different points is called transversal। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को किसी भी प्लेन पर एट डिस्टिंक्ट डिफरेंट पॉइंट्स पर उसको काटता है तो उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे कि फिगर 1 में देखो, यहाँ ये एक लाइन है L और दूसरा लाइन है M। अब इस दोनों को काट रहा है ये N। इस रेखा का नाम है N। दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग। व्हेन दिस इज इंटरसेक्टिंग, जब ये इसे काट रहा है तो पहला पॉइंट यहाँ कटा और दूसरा पॉइंट यहाँ कटा। तो जिस पॉइंट पर कट हुआ है उसका नाम A रख दो, दूसरे पर नाम रख दो B। तो यही जो कटिंग, ये जो लाइन है जो दूसरे लाइन को कट करता है, वो इंटरसेक्ट करता हो, इसे ही ट्रांसवर्सल बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि समझो, यहाँ पर मान लो ये दो लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। एक का नाम रख दिए हम लोग L, दूसरे का नाम रख दिए M। दिख रहा है ना स्क्रीन पर? यस सर। ठीक है, अब कोई दूसरा रेखा आती है उसको काट देती है। इसका नाम मान लो P ही रख दिए। तो अब ये P जो है काटते हुआ गई, तो L को काटी है कहाँ पर? यहाँ पर। एक पॉइंट यहाँ पर है बिंदु और दूसरा यहाँ पर काटा है। तो मान लो जहां जहां पर कटा है, इंटरसेक्ट किया है, काटना मतलब इंटरसेक्ट, तो इस पॉइंट का नाम रख दो A, दूसरे का नाम रख दो B। तो पॉइंट जहां पर कट रहा है उसका नाम कुछ भी रखेंगे, और जो लाइन जिसको काटती है उसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। तो ये जो कटी है, ये जो लाइन है लाइन P, ये ट्रांसवर्सल हुआ। ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। तो बस कुछ नहीं, जो काटने वाला लाइन दूसरे को होता है उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, बस यही समझना है। तो अब यहाँ तुम पिक्चर देखो, पिक्चर को और बड़ा करते हैं और दिखाते हैं। पिक्चर अब बहुत बड़ा हो गया है, दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। तो अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझना है कि इंटीरियर रीजन क्या होता है, एक्सटीरियर रीजन क्या होता है, और ट्रांसवर्सल तो समझ ही गए। ट्रांसवर्सल में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसवर्सल समझ गए ना? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब यहाँ लिखा है इन फिगर 1 एंड 2 लाइन N इज ट्रांसवर्सल। देखो फिगर 1 एंड 2, फिगर 1 है ये और फिगर 2 है। तो लाइन N, ये जो लाइन है यहाँ भी काट रहा है, इस लाइन का नाम N है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। विद रेफरेंस टू L एंड M, विद रेफरेंस टू
L and M, ये L एक लाइन है और M दूसरा लाइन, और इस दोनों को काट रहा है एक लाइन नंबर N, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। जहां पर कट रहा है उस पॉइंट का नाम A, दूसरे पॉइंट का नाम B रख दिए। फॉर दिस इट इंटरसेक्ट्स दीज लाइंस इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड B। ये ट्रांसवर्सल लाइन हमेशा किसी भी जब वो काटता है तो दो पॉइंट बनता है। देखो ये जो N है और यहाँ भी ये लाइन जो N है, तो ये जब काट रहा है तो दो पॉइंट बन रहा है, ए पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ, क्योंकि दो लाइन है, दो लाइन को एक लाइन काट रहा है, तो दो लाइन को काटने पर दो पॉइंट बन जाएगा। इट विल बी मेड 2 points हियर ऑल्सो। यस सर। तो ये भी काट रहा, तो यहाँ दो पॉइंट बन गया। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ फिगर 1 and 2, लाइन N इज ए ट्रांसवर्सल विद रेफरेंस टू L and M। तो L और M, L ये रेखा और M ये लाइन, L ये वाला लाइन और M ये वाला लाइन नाम दिया हुआ है। तो L और M को N काट रहा है, L और M को N काट रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। फॉर दिस इट इंटरसेक्ट्स दीज लाइंस इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B इन फिगर। अब फिगर 3 में क्या है, यहाँ देखो, यहाँ ये जो लाइन है N ये कट रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ एक ही पॉइंट बना है, एक पॉइंट बना है ना, यस सर। यहाँ देख रहे हो, ये एक पॉइंट बना यस रहा, सर। यहाँ दो पॉइंट नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ बीच से गया, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं हो गया, ये ट्रांसवर्सल नहीं नहीं हुआ। है। नहीं हो गया। तो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन क्या हो गया, अच्छी तरह समझ लीजिए। ट्रांसवर्सल का मतलब ये हो गया, देखो ट्रांसवर्सल का मतलब ये हो गया कि जब वो कट करे तो दो पॉइंट बनना चाहिए। कितना पॉइंट बनना चाहिए? 2 पॉइंट। दो पॉइंट। और जहां एक पॉइंट बनता तो वो ट्रांसवर्सल नहीं। तो ये बात को समझने में कोई प्रॉब्लम कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? यस सर। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, ये समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ट्रांसवर्सल है कि कोई लाइन किसी लाइन को काटे तो दो पॉइंट बनना चाहिए, वन पॉइंट नहीं। दो पॉइंट बना तो वो ट्रांसवर्सल है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। A point X may be selected on the transversal and the 3 points B, A, X and can be read in order to in which they appear on the transversal. If this order is either BAX or XBA, figures 1 and 2 Sir, your voice is not coming. So your voice is cracking. Sometimes it happens, but now are you able to listen? I think you are listening properly, because when you listen properly, so my mic shows that you are listening properly. So now you are listening now. Yes, sir. Okay. Respectively, then point X is said to be in the exterior region with reference to the lines L and M. A point X may be selected on the transversal. Okay, so now you understood what is transversal line? Yes, sir. Yes. Okay. Now you understand this one. A point X may be selected on the transversal and the 3 points B, A and X can be read in order to appear on that transversal. If this order is either BAX or XBA, figures 1 and 2, यहाँ figures 1 and 2 respectively, then point X is said to be in the exterior region with reference to the lines L and M. In either case, X is not between A and B, should be between A and B, then the point X falls in the interior region with a reference to L and M. This occurs in figure 3. The following figure shows the different regions. अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई जो ट्रांसवर्सल लाइन है
तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो जहां पर कटता पॉइंट उसके अगर बाहर है तो वो एक्सटीरियर लाइंस कहलाएगा, एक्सटीरियर रीजन। और अगर कोई बिंदु अंदर कोई पॉइंट अंदर होता है तो उसे इंटीरियर रीजन कहते हैं, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर किया गया। पिक्चर और बड़ा करते हैं, समझ लो। ये देखो ये लाइन L है और ये लाइन M है और ये एक लाइन ट्रांसवर्सल है। तो ये जो ट्रांसवर्सल है लाइन, इसके अंदर का एरिया इंटीरियर रीजन कहलाएगा और बाहर का एरिया एक्सटीरियर रीजन कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम समझने में? नो सर। नो इसमें कुछ है ही नहीं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यस सर। ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये है ना ट्रांसवर्सल लाइन। यस सर। हाँ तो इसके अंदर वाला पार्ट जो है वो इंटीरियर रीजन हो गया और इसके बाहर जो ये है इतना सारा ये सब वो एक्सटीरियर रीजन हो गया, बस और कुछ नहीं। अंदर, हाँ, अंदर वाले को इंटीरियर बोलते हैं और बाहर वाले को एक्सटीरियर बोलते हैं। अब इसको समझने के बाद देखना, अभी आंसर क्वेश्चन देखने के साथ ही बन जाएगा। अब दूसरे पिक्चर में भी समझ लो। यहाँ देखो, यहाँ दो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं, यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन का एग्जांपल क्या था कि 2 पॉइंट होना चाहिए, है कि नहीं? यस यस सर। सर तो यहाँ देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो कट रहा है तो यहाँ पर एक ही पॉइंट बन रहा है, बस यहाँ पर एक, और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन कट रहा तो ये एक ही पॉइंट बना रहा। तो जहाँ एक पॉइंट वाला हो तो वो और भी आसान है। अंदर वाला पार्ट इंटीरियर रीजन और बाहर वाला पार्ट जो है वो एक्सटीरियर रीजन हो जाएगा। एक्सटीरियर रीजन। अब एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल। अब लिखा हुआ है कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन होता है और वो जब कट करता है तो एक एंगल बन जाता है। यहाँ देखो इस पिक्चर में मैंने बड़ा किया, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं? हाँ, तो ये जब कट किया यस यहाँ, सर। हाँ, जब ये कट किया तो यहाँ 2 पॉइंट बना, एक यहाँ पर बना है देखो और एक यहाँ पर बना। लेकिन अगर हम लोग इसको सर्कल करते हैं इस तरह से तो यहाँ पर ये एंगल भी बन जाता है, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। तो ये हर सब में ये 4 एंगल बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझ, समटाइम्स योर वॉइस इज क्रैकिंग। तो अब इसको यहाँ देखो, जैसे कि मान लो ये दो कोई लाइन है, अब यहाँ पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन आ गया और अगर हम लोग यहाँ पर सर्कल करते हैं तो यहाँ पर 4 एंगल बनता है, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, ये चौथा एंगल, 1 2 3 4। तो बस कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे या किसी फिगर में ट्रांसवर्सल लाइन है तो उससे एंगल्स भी बन जाता है। अब वो कैसे बनता है अभी तुरंत तुमको दिखाएं और अब सॉल्व करो, देखो कितना आसानी से बन जाएगा। अब पेज नंबर 264 वाला पेज लाते हैं। वैसे पेज नंबर सर योर वॉइस इज क्रेकिंग। यस सर। पेज नंबर 263 वाला पेज लाते हैं, ठीक है? यस सर। तो पेज नंबर 263 में देखो क्वेश्चन कितना आसान है और इसका आंसर उससे भी ज्यादा आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन को फिगर के साथ पढ़ना और समझना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, लाइन L इज ए ट्रांसवर्सल टू लाइन N and M। हम लोग जान रहे हैं कि लाइन L जो है यहाँ पर ये वाला, ये इस दोनों को काट रहा है, लाइन N को और लाइन M को। तो ये ट्रांसवर्सल हो गया ना? यस सर। यस सर। नेम द फॉलोइंग, बस नाम लिख देना है। तो पहला क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर रीजन में मतलब अंदर वाले पार्ट में, अंदर वाला पार्ट ये हो गया और एक्सटीरियर हो गया बाहर ये वाला। तो अंदर वाले पार्ट में देखो क्या क्या आ रहा है, 7 2 3 6 और एक्सटीरियर वाले पार्ट में 1 8 4 5, है कि नहीं? यस सर। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 उसको पढ़ो क्या लिखा है। A pair of interior angle on the same side of the transversal. तो हम लोगों को नेम द फॉलोइंग मतलब नाम लिखना है। तो अब नाम लिखते चलो, क्या लिखा है। नंबर 1 का आंसर देखो कितना इजी है। पेंसिल थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि दिखे। हो गया। अब देखो, ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के अंदर वाले रीजन का हम लोग को कौन कौन सा एंगल बनता है वो लिखते हैं। तो अंदर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, अंदर देखो क्या बन रहा है। अंदर है एंगल 2 and 6। देखो एंगल 2 And 6. and 6 और एंगल 6, ये एंगल का सिंबल है, एंगल का सिंबल है। Yes, sir. फिर उसके बाद है एंगल 7 and 3, एंगल 7 and 3, एंगल 7 और एंगल 3। And 3. यस, कॉमा देना है, फिर लिखना है एंगल 7 and 3। And 3. ये अंदर वाले पार्ट में है ना, इंटीरियर वाले भाग में। Yes, sir. ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, ए पेयर ऑफ A एक्सटीरियर। pair of एक्सटीरियर मतलब जो बाहर है, अब हम लोग उसको लिखेंगे। तो बाहर कौन कौन सा है, बाहर देखो एंगल 1 and 4 है। एंगल यहाँ देखो पिक्चर में एंगल 1 और एंगल 4 बाहर है ना। Yes, sir. और फिर एंगल 8 and एंगल 5 ये बाहर है ना। Yes, sir. तो बस कुछ नहीं, यहाँ तो पिक्चर में ही दिया हुआ, ये तो बहुत ही इजी है। तो जो अब बाहर, अब जो एक्सटीरियर है उसको लिख दो। तो बाहर कौन कौन सा है, एंगल 1 and 4, एंगल 1 And 4. एंड एंगल 4, फिर कॉमा देना है। फिर बाहर क्या है, एंगल 8 and एंगल 5, एंगल 8 And angle 8 and angle 5. एंड एंगल 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 2 पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 जोड़ा लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स के अंदर जो है उसका 2 जोड़ा का लिखना है, मतलब अंदर वाले पार्ट का। तो अंदर वाले पार्ट में 2 जोड़ा कौन कौन सा बन रहा है, इसका भी